Welcome students. Now see exponents and power. Here in previous chapters we have read a square and a cube. Now see exponent and power. Now see some rules and some examples on basis of those. At first, if a number is given at 20, if we factorize it, we can write 2 into 2 into 5, or we can write 2 raised to power 2 into 5 raised to power 1. यानी इस नंबर को फैक्टराइज करके हम एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं. नाउ सिमिलरली इफ 50, it can be written as 2 into 5 into 5, so it is 2 raised to power 1 into 5 raised to power 2. Similarly, if it is 1000, here we can write it 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 20, and 25 the 100. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 60, और 65 the 80, 85 the 200, 205 the 1000. So it can be written as 2 raised to power 1, 2, 3, 4 into 5 raised to power 1, 2, 3. It is only 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40, 45 the 200, 200, 205 the 1000, यानी 2 raised to power 3. इस तरह से किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज करके उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ इफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है. फॉर एग्जांपल 2 raised to power 2, इट मीन 2 into, यानी सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, सो इट इज 4. और 2 raised to power 4, इट मीन 2 into 2 into 2 into 2, इट इज 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 60. और in the 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2, here 2 raised to power 3, it is 8, 5 raised to power 2, 25, 25 8 200. इस तरह से यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको just है हम सिंपल नंबर के रूप में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ इफ x raised to power a into y raised to power b, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x a raised to power m into b raised to power m. यानी जो है अगर ऐसे एक्सपोनेंशियल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना हो जिसके बेस जो है जैसे मान लीजिए कि a raised to power m हो और into a raised to power n हो. इस तरह से वेरियस फॉर्म हो सकते हैं, या a raised to power m raised to power n, और a raised to power n डिवाइड a raised to power n. इस फॉर्म में जब सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं तो ऐसे केस में हम कुछ रूल्स को यानी फार्मूला को यूज कर सकते हैं. Here see, if a raised to power m into a raised to power n, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे दो नंबर्स जिनके बेस सेम और पावर डिफर, ऐसे केस में प्रोडक्ट फाइंड करते समय a raised to power m plus n लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 raised to power 3
इंटू 5 सॉरी 2 रेज टू पावर 5, दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर को ऐड करके लिख देंगे। और -3 रेज टू पावर 5 इंटू -3 रेज टू पावर 4, so it can be write as -3 raised to power 5 and 4 9, or -11 raised to power 3 into -11 raised to power -2, it can be write as -11 raised to power 3 plus -2, so it is -11 raised to power 3 minus 2, it means -11 raised to power 1, it is -11, ठीक है। और 5 raised to power -3 into 5 raised to power -4, दोनों माइनस है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे -7, और -11 raised to power -4 into -11 raised to power -3, क्या हो जाएगा -11 raised to power -4 and -3 equal to -7, या 5 raised to power 3 into 5 raised to power -3, here 5 raised to power 3 -3, it means 5 raised to power 0, और किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी तो यहाँ ध्यान देना यह है कि किसी भी नंबर पे यदि 2 रेज़ टू पावर 0 है 1, 5 रेज़ टू पावर 0 1, 1000 पावर 0 है इट इज आल्सो 1, यानी किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन यदि 2 रेज़ टू पावर 0 into 3 raised to power 0 है तो 2 raised to power 0 यानी 1, 3 raised to power 0 यानी 1 बन जाएगा, और 2 raised to power 0 -3 raised to power 0, 2 raised to power 0 यानी 1, 3 raised to power 0 यानी 1 इक्वल टू 0। इस तरह से यह जो है हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। Now see some more examples. If 3 raised to power 4 multiply 3 raised to power -3, now here 3 raised to power 4 plus -3, it means 3 raised to power 4 -3, 3 raised to power 1, or 5 raised to power -8 or into 5 raised to power 3, so 5 raised to power -8 or plus 3, it means 5 raised to power -5। इस तरह से यदि दोनों का बेस सेम है और पावर डिफर है और उनके बीच यदि हमें डिवाइड फाइंड करना हो यानी डिवीजन फाइंड करना हो, ऐसे केस में यदि दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, m a raised to power m minus है। फॉर एग्जांपल 5 raised to power 3 डिवाइड 5 raised to power 1, तो इट कैन बी राइट एज 5 raised to power 3 minus 1, it is 5 raised to power 2, or if -11 raised to power 7 divide -11 raised to power -4, here -11 raised to power 7 minus -4, तो -11 raised to power 7 minus plus 4, so -11 raised to power 7 to 11। इस तरह से -8 raised to power 8 डिवाइड है -8 raised to power -4, so -8 raised to power 8 माइनस इन ब्रैकेट -4, यहाँ हो जाएगा -8
रेज टू पावर 8 माइनस माइनस प्लस 4 यानी -8 रेज टू पावर 8 12 हो गया। इस तरह से नाउ इफ a raised to power n into a raised to power n b raised to power n यानी दोनों का बेस अगर डिफर है और पावर सेम है, ऐसे केस में बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं बट पावर विल बी सेम। यानी 5 रेज टू पावर 3 इनटू मान लो 3 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पावर तो सेम रहेगा, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यदि 8 या -8 रेज टू पावर 7 इनटू -3 रेज टू पावर 7, यहाँ दोनों का पावर सेम है 7 माइनस माइनस प्लस 8 3 या 24। इस तरह से -30 रेज टू पावर 5 और इनटू 4 रेज टू पावर 5। ऐसे केस में फिर यहाँ दोनों का पावर सेम है, बेस डिफर है, 34 या 52 -52 रेज टू पावर 5 यह हो गया। इस तरह से हम जो है वेरियस टाइप्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ इफ now see if x raised to power -1 it is equal to 1 by x, or x raised to power -2 it is equal to 1 by x square, or x raised to power -3 it is 1 by x cube, x raised to power -7 1 by x raised to power 7, and x raised to power -100 equal to 1 by x raised to power। इस तरह से now if 2 raised to power -1 it can be write as 1 by 2, or 2 raised to power -3 it is 1 by 2 raised to power 3, it is 2 raised to power 3 or 5 raised to power -7 it can be write as 1 raised to power 1 by 5 raised to power 7। इस तरह से हम जो है इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नाउ इफ 2 by 3 raised to power -1 it can be write as 3 by 2 raised to power 1 it is 3 by 2, or -5 by 7 raised to power -3 it can be write as -7 by 5 raised to power 3, यानी इनवर्स कर देते हैं। नाउ जस्ट अभी पहले बताया कि किसी भी नंबर पे या किसी भी बेस पे यदि पावर के रूप में 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू, जैसे मान लें कि 5 रेज़ टू पावर 0 माइनस 4 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 0, या 5 रेज़ टू पावर 0 1 4 रेज़ टू पावर 0 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम एक्सपोनेंट एंड पावर में वेरिएंट टाइप के सॉल्यूशन जो है फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में सबमिट किया जाएगा, इसलिए जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।